Good evening and welcome everyone to this session on Indian polity. In this session we are going to start with fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी शुड बी रेड थ्रू द प्रिज्म ऑफ फंडामेंटल द प्रियम्बल एंड ऑल. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बाय द वे. सो किसी को कोई डाउट है तो आई गिव यू 5 minutes टू आस्क योर डाउट्स. You can ask your doubts whatsoever in next 5 minutes. This is important for us to address your queries also. मैं जानबूझ के थोड़ा गैप ले रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने डाउट्स आराम से पूछ सको. कोई भी डाउट है पॉलिटी में अब तक तो फील फ्री टू आस्क मी इन अनदर 5 minutes. Quickly guys. No doubts? Good evening everyone. Please help me how to cover backlog videos as I have enrolled today. Your name is Nisha. Nisha, when are you planning to appear for UPSC Civil Services exam prelims? This year or next year? When do you plan to appear? Quickly. Accordingly, I'll be able to answer your concern also. (2022) So every Saturday and Sunday there are no classes on Saturdays and Sundays. You can use that time to cover the backlog of the classes that is there. Alright, क्योंकि वो उस टाइम में और कोई क्लासेस तो है नहीं तो आप उस टाइम पे अपना कोई भी जो बैकलॉग है चाहे पॉलिटी के हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के हैं वो आप कवर कर सकते हो. ऑलराइट, सो we've already covered this part. There are no such thing that is left as such. तो by definition fundamental rights क्या होते हैं, legal rights क्या होते हैं, ये सारा मैंने कल बताया था. Right, now let's jump to another PPT quickly wherein I have covered this part. So fundamental rights, ordinance is an executive power. ये तो उसका डाउट था. चलो, how can we think of switching, ये भी छोड़ दो. Fundamental rights, part 3 of the constitution I'm going to deal with. First of all, fundamental rights समझने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. Yesterday I gave you a brief overview of the distinction between fundamental rights and directive principles of
स्टेट पॉलिसी। कल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, राइट? आज उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि डिफरेंस जो हमने एक जनरल वे में समझा था, अब स्पेसिफिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को हम समझेंगे। कल हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी समझा था ब्रीफली, उससे पिछली क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था। yesterday I gave you an overview. There is a sound disturbance. Is everyone facing this problem? Are you still facing that issue now? Okay, wait. Now has it gone down now? Is it fine now? Yes or no, quickly? अब कोई इशू है किसी को? Okay, wait. I am going to end the session for just 1 minute to figure this out. Okay, stay tuned. I am going to end this session for just 1-2 minutes. All right. Now is it any better now? Okay, now please manage. So what are human rights? What is a right? Right is a moral or legal entitlement to have or to do something. Right is a moral or legal entitlement. What are human rights? Human rights are broader than the fundamental rights. I am going to tell you how. A set of basic rights, human rights होते हैं जो basic rights and freedoms that belong to every person in the world from birth until death. जीने से मरने तक, ये वो राइट्स हैं जो इनेट राइट्स हैं। इनेट राइट्स होते हैं जो हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिले हैं, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स which are bestowed upon us, which inhere in us. इनहेर होता है INHERE, राइट जो हम में बसते हैं। राइट्स which inhere in us because of the fact that we are born as human beings, right? तो ये वो वाले राइट्स हैं जो हमें इंसान पैदा होने की वजह से हमें मिले हैं। They apply regardless of where you are from, what you believe or how you choose to live your life. They can never be taken away, although they can sometimes be restricted. For example, if a person breaks the law or in the interest of national security. These basic rights are based on values like dignity, fairness, equality, respect and independence. Alright, fundamental rights, these are fundamental for the human survival, not mere animalistic survival but humanistic survival. Okay, these are fundamental for human survival, fundamental rights. अब देखो, एक होते हैं ह्यूमन राइट्स वो तो हम इंसान पैदा हुए हैं, लेकिन किसी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स अलग हो सकते हैं। क्यों? इंडिया के फंडामेंटल राइट्स यूके के, यूएसए के फंडामेंटल राइट्स से अलग होंगे। क्यों?
क्योंकि ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करे गए हैं, जिनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल माना है। फंडामेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट माना है, ऑफ फंडामेंटल वैल्यू माना है। दीज आर द राइट्स दैट आर ऑफ फंडामेंटल वैल्यू। ओके, दीज राइट्स आर ऑफ फंडामेंटल वैल्यू। समझ में आया? अब यूके के फंडामेंटल राइट्स अलग होंगे। फिर एक और इसमें डिफरेंस है, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड राइट्स। कुछ राइट्स को यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में रिकॉग्नाइज किया गया है, वो यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। अब अगर मेरे को इसको ड्रॉ करना हो तुम्हें समझाने के लिए, तो कुछ इस तरह से समझना। देखो, ये तो हो गए ह्यूमन राइट्स, दीज आर वेरी वेरी ब्रॉड, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। उसमें से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज कर लिए कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में रिकॉग्नाइज्ड हैं, संयुक्त राष्ट्र ने इसे डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिए कि ये इंडिया के फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हैं। उसमें कुछ और ऐसा है, और भी नैरो डेफिनेशन है जो फंडामेंटल नहीं है, लीगल राइट्स हैं, जो हमने कल इस डायग्राम से समझे थे। ये हमारी कंट्री का सर्कल है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। इसके बाहर हमारी कंट्री के ही लोगों को जो और छोटे छोटे राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कि इतने फंडामेंटल वैल्यू के नहीं है, लेकिन राइट्स तो हैं वो भी, ठीक है। समझ में आया? ये पार्ट 3 में जो राइट्स, किसी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। इंडिया के राइट्स फंडामेंटल जो हैं वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, ये वो वाले राइट्स हैं। गॉट इट नाउ? तो ये तीनों सेट ऑफ राइट्स इवॉल्व होते रहते हैं जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, as the human civilization is improving, as the human civilization is progressing, so human rights are an evolving phenomena. पहले राइट टू प्राइवेसी नहीं था, राइट, अब राइट टू प्राइवेसी भी है। राइट टू रिस्पेक्ट, लोगों को पता ही नहीं था रिस्पेक्ट क्या होती है, फिर राइट टू रिस्पेक्ट आया, राइट टू प्राइवेसी आया, डिग्निटी आया। फिर कुछ उनमें से कुछ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जब जो फिलोसोफर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो इसके बारे में लिखते रहते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इंडिया में, यूएसए में, यूके में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में इवॉल्व हो रहा है, वर्ल्ड ओवर इवॉल्व हो रहा है ना। जैसे हम पढ़ते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उनमें भी कुछ राइट्स होंगे। तब से सदियों से, करोड़ों सालों से जो चीजें रिकॉग्नाइज होती हुई आ रही हैं, उसको हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, बोला ह्यूमन राइट्स हैं। अब जब समाज पे और ज्यादा अकल आएगी, यूनाइटेड नेशंस की थिंकिंग मैच्योर होगी, तो यूनाइटेड नेशंस इन ह्यूमन राइट्स का कुछ हिस्सा यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपडेट करके उसमें ऐड कर देगा। फिर जब और इंडिया में ये अकल आएगी कि हाँ, अर्नब गोस्वामी या ये जो भी चीजें चल रही हैं, एमएफ हुसैन के राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाएगा या जुडिशरी की कोई जजमेंट आएगी और उसमें लिख दिया जाएगा जुडिशरी में कि राइट टू प्राइवेसी इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है, तो फिर वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएगा। दिस इज हाउ द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस। क्लियर? और ये कोई टिपिकल वे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में किसी राइट को जगह नहीं मिली, किसी ह्यूमन राइट को, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उस राइट को जगह मिल जाए। समझ में आया? लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम यू गाइज शुड बी क्लियर। ये इसलिए नहीं है कि हाँ एक मैकेनिकल वे है कि पहले ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर होंगे, फिर यूएन उन्हें अडॉप्ट करेगा, फिर इंडिया करेगा, कहीं नहीं करेगा, पता नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट एक मेथड ऐसा है कि नॉर्मली ऐसा होता है। कभी कभी इंडिया में अगर कोई बुद्धिजीवी पैदा हो गए, मान लो कि जैसे हमारे यहाँ पे मैशियावेली, जैसे यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड के मैशियावेली हैं, हमारे यहाँ पे कोई थिंकर पैदा हो गए, तो उन्होंने अगर ये रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ने कोई राइट, कोई दोबारा से पैदा हो गया ऐसा, उसने बोला कि ये राइट होना चाहिए, हो सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अपडेट हो जाए, राइट। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोला, योगा करना अच्छी चीज है, योगा करना इंडिया से उत्पन्न हुआ आइडिया, राइट। वो कुछ भी हो सकता है। नाउ
By definition, a constitutional right is a legal right, one that comes above all other legal rights. Amendability by legislature or parliament. The outer layer is most vulnerable. Outer layer is most vulnerable. ये कल मैंने समझाया था. Difference between fundamental right, constitutional right and a legal right. Fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution and they cannot be taken away by an ordinary law enacted by the legislature. Right? Ordinary law enact करके आप fundamental rights को abridge नहीं कर सकते. अगर parliament of the day ये कहे कि fundamental right को हमें लोगों से छीनना है, जैसे आर्टिकल 19 के अंदर एक राइट हुआ करता था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, राइट टू प्रॉपर्टी. अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी क्या हुआ कि उसको बाद में सरकार ने वापस ले लिया. वापस ले लिया मतलब ये बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी विल नो लॉन्गर बी अ फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से एक्सक्लूड कर दिया. कहाँ डाल दिया? आर्टिकल 300A में डाल दिया. यानी कि ये वाले जो आर्टिकल्स हैं इनके बाहर कोई भी राइट है तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है. इन आर्टिकल्स के अंदर कोई भी राइट है तो वो फंडामेंटल राइट है. ठीक है, आर्टिकल्स 12 to 35 के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स होंगे. क्लियर? पार्ट 3. अब देन आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी बन गया, लेकिन ये जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्योंकि आई एक्सप्लेन्ड यू yesterday. What did I explain? I had explained you that any right which is outside part 3, which contains all the fundamental rights, any right which is outside part 3 is a constitutional right. Done? All right? Anybody, any problem thus far? So far so good for everyone? ऑर्डिनरी लॉ और बिल डिफरेंस बिटवीन मनी बिल वो तो बाद में आएगा ना. अभी तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, वो हम तब पढ़ेंगे. वी विल कवर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ ऑर्डिनरी बिल व्हेन वी वुड बी कवरिंग व्हेन वी वुड बी कवरिंग पार्लियामेंट एज अ टॉपिक. ओके, चैप्टर 22 जो है. नाउ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एक्ट एज अ लिमिटेशन नॉट ओनली अपॉन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. फंडामेंटल राइट्स क्यों हैं? हमने सरकार को अपना सब कुछ दे दिया. ठीक है, देखो जैसे हम लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसे है जैसे कि हमने 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सब कुछ दे दिया. अब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं चुप, बोलो मत, मेरे खिलाफ मत बोलो, मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं, चुप रहो. लेकिन अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा होगा तो कम से कम उसके पास ये हक तो हो कि वो अपने फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्ट कोर्ट में जाके शिकायत लगा सके, कंप्लेंट कर सके, है ना. तो फंडामेंटल राइट्स तभी दिए गए. फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स ने लिए और बदले में अपने आप को गवर्न करने का जो हक है वो सरकार को दे दिया. गॉट दिस? राइट टू बी गवर्नड हमने वो सैक्रिफाइस कर दिया फॉर द सेक ऑफ नेशनल गुड, फॉर द सेक ऑफ ओवरऑल वेलफेयर ऑफ इंडिया, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार why do we create government? We create government so that we can progress, so that we can
वी कैन, गवर्नमेंट हमारे लिए डिसाइड करेगी तो क्या होगा, अगर हम सब इंडिविजुअली अपने लिए डिसाइड करेंगे तो हर कोई एक एक हेमा मालिनी ले आएगा, मतलब कैंट प्योरीफायर ले आएगा, समझ में आया। हर कोई फिर अपने लिए सड़क बनवाएगा, ये तो हो नहीं सकता। हर कोई अपने लिए एक ल्यूमिनस इन्वर्टर लेके आएगा सचिन तेंदुलकर वाला। अब सचिन तेंदुलकर बेचारा कहाँ कहाँ बिकेगा, अन अकेडमी पे बिक गया, फिर कहीं और बिकेगा, दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। तो हर कोई ल्यूमिनस इन्वर्टर लगवाएगा, इससे बढ़िया है कि सरकार एक डैम बनाए, यानी कि कॉमन पॉलिसी मेकिंग, कॉमन एसेट्स क्रिएशन। अब उसके लिए हमें सरकार को अपने हक देने होंगे, सरकार हमारे हक ले ले, लेकिन हमारे को गवर्न करने का हक ले ले, लेकिन हमारे को इन रिटर्न ये गारंटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी। समझ में आया। धीरे धीरे से तुम लोगों की थिंकिंग मैच्योर हो जाएगी कि हमने एक बुक लिखी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बुक लिखी, हमने ये सबसे पहले तो तय किया कि हम अपने आप को एक भारत मूल देश का नागरिक मानते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नेंस क्या होगी, ये सारा कुछ लिख दिया। प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर सीएम होंगे, अब इनके पास क्या पावर्स होंगी हमने ये भी लिख दिया। लेकिन सिटीजन्स के पास क्या बचा, इस कंट्री के नागरिकों के पास क्या बचा, इस कंट्री के नागरिकों के पास कुछ ज्यादा नहीं बचा। इनको सिर्फ ये मिला कि अगर इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, कोई भी यदि अपने हकों की उल्लंघना करता है, कोई भी अपने राइट्स को यदि वॉयलेट करता है, यानी कि मिसयूज ऑफ पावर यदि कोई करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो सीबीआई क्यों ना हो, तो आप सिटीजन जो हैं सरकार के खिलाफ इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए गए जुडिशरी के पास जा सकता है, डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। जुडिशरी, मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है। जुडिशरी कैन रिव्यू द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जुडिशरी कैन रिव्यू द legislative actions, judiciary can review every type of action. Clear? Is this clear to everyone? ये हमें गारंटी फंडामेंटल राइट्स की इसलिए दी गई कि तुमने अपने जो राइट्स को सैक्रिफाइस किया है, राइट टू गवर्न, हमने कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स को दे दिया, राइट टू गवर्न। देखो सरकार के पास में कितनी ज्यादा पावर्स हैं कि कंट्री का भला सोचते हुए, फॉर द सेक ऑफ मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट कैन डू हार्म टू यू, गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू, प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम यू। अंबानी, अदानी है तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अगर मैंने पैसा कमाया तो वो मेरा इंडिविजुअल वेल्थ है, लेकिन उस वेल्थ को सरकार ले सकती है, क्यों? फॉर द सेक ऑफ लार्जर गुड, ठीक है। बट इन दी प्रोसेस सरकार को ये ध्यान रखना होगा, बाकी सारे राइट्स ले लो लेकिन फंडामेंटल राइट मत लो। समझ में आया? फंडामेंटल राइट हमारे पास रहने दो। क्लियर हुआ ये? These are the sovereign guarantees. Fundamental rights are also known by the name of sovereign guarantee to the people. Clear? Done for everyone? ठीक है, अब आगे चलते हैं। Article 12 definition of state for the purpose of part 3 of the constitution. Article 12 definition of state. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes number 1 the government and the parliament of India, number 2 government and the legislature of each state. ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। These fundamental rights are available to Indians against the state of
India. We are not talking about the state of Punjab, Haryana. No, we are talking about the concept of nation state. Nation state क्या है? USA is a nation state. जब हम नेशन की बात करते हैं तो हम नॉर्मली ये कहते हैं इंडिया इज अ नेशन, लेकिन जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम इसे नेशन स्टेट बुलाते हैं. पाकिस्तान इज ऑल्सो अ नेशन स्टेट, यूके इज ऑल्सो अ नेशन स्टेट. तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज essential to be clarified. Why Article 12 is a fundamental right? No, Article 12 is not a fundamental right. Article 12 is just a explanation of what means the state. कोई भी बॉडी जो सरकार को रिप्रेजेंट करती है वो स्टेट है. कोई भी बॉडी जो सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में सिटीजन्स के बिहाफ पे एक्शंस ले रही है वो स्टेट है. कोई भी बॉडी, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी लाइब्रेरी हो, चाहे वो सरकारी कुछ भी हो, इसरो है, वो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघना, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकती. इसीलिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्लियर किया गया है पहले. समझ में आया? एट द आउटसेट इटसेल्फ पार्ट 3 that contains the fundamental rights, the very first article at the outset itself clears the meaning of state here, clarifies the meaning of state. All right, is that clear to everyone? Just a minute guys, just 1 minute, there is an important call. Am I audible to everyone? Neeti, is it clear? ओके, ठीक है. तो इसीलिए आर्टिकल 12 पहले ये क्लियर करता है. देखो, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन पहले समझ लो सारा कुछ. जैसे एक काम समझो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंडिया का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है ना? अब क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इज इट अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट? इज इट अ पार्ट ऑफ नेशन स्टेट ऑफ इंडिया? नो, इट इज नॉट. इसके लिए क्राइटेरिया है. आज हम आउटसोर्सिंग के एरा में हैं. आज हम किस में हैं? टुडे वी आर इन द एरा ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आज काफी सारे काम अपने आउटसोर्स करती जा रही है. आउटसोर्स कैसे? गवर्नमेंट ये कह रही है, मोदी जी क्या कहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट. तो आउटसोर्सिंग कैसे हो रही है? गवर्नमेंट इज गिविंग इट्स एक्टिविटीज, गवर्नमेंट इज गेटिंग इट्स एक्टिविटीज डन थ्रू आउटसोर्सिंग. के स्पेलिंग जो भी हैं देख लेना, ठीक है. प्राइवेट सेक्टर क्या किया जा रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी जा रही है, ठीक है. दूसरी तरफ एनजीओ से काम लिया जा रहा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, पहले एनजीओ का फिर प्राइवेट सेक्टर का. अगर प्राइवेट सेक्टर निजी उपचार केंद्र, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सेंटर जो है, अगर वहां पे किसी से ज्यादा पैसे मांगे जाएं तो क्या सरकार उससे गलत, क्या सरकार की डेफिनेशन के अंडर आएगा? क्या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल हैं? नहीं. लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर सरकार का औजार, टूल बन के काम कर रहा हो, इफ प्राइवेट सेक्टर इज द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ state, if private sector is the instrumentality of the state, then yes. Clear?
ठीक है, तो अब अगर कोई एनजीओ जो सरकार ने हायर किया है अपना काम करवाने के लिए, अगर वो वॉयलेट करे आपका राइट, तो सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे लगे हैं इसमें, एनटीपीसी में। अगर एनटीपीसी वेदांता प्राइवेट कंपनी के साथ में छत्तीसगढ़ में या झारखंड में वेदांता ग्रुप के साथ में, VEDANTA, वेदांता ग्रुप ऑफ प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलके वेदांता ग्रुप ऑफ प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलके कोल माइनिंग में कुछ ऐसा कर दे कि कोल माइनिंग वगैरह ज़्यादा होने लग जाए या फिर पॉल्यूशन हो जाए, वाटर कंटामिनेट हो जाए, तो वेदांता और ये इन दोनों ने तो एक जॉइंट वेंचर बनाया था। जॉइंट वेंचर मतलब एक जॉइंट कंपनी। अगर ये जॉइंट वेंचर कंपनी किसी के राइट्स वायलेट कर दे, वाटर को कंटामिनेट कर दे, तो क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो कैन द गवर्नमेंट बी हेल्ड लायबल? यस और नो? गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, ये गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी में शेयर्स रखती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इस कंपनी में हिस्सेदारी रखती है और इसको वॉयलेट करती है, तो यस। क्लियर? समझ में आया? तो सरकार को जिम्मेवार माना जाएगा। अगर पानी गंदा करने के लिए, वाटर कंटामिनेट करने की जिम्मेवारी 15 करोड़ पेनल्टी है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को देनी होगी। किसको देनी होगी? दोनों कंपनीज को। तो दोनों कंपनीज, अगर एनटीपीसी का हिस्सा 40% है, वेदांता का हिस्सा इस जॉइंट वेंचर कंपनी में 60% है, तो 15 करोड़ विल बी डिवाइडेड बिटवीन वेदांता एंड एनटीपीसी इन द रेशियो ऑफ 40:60। गवर्नमेंट, समझ में आया? तो मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट कैन नॉट एब्सॉल्व इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कैन नॉट श्रग ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या पता। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं छुड़ा सकती सिर्फ ये कह के कि हमने तो प्राइवेटाइज कर दिया था, राइट? अगर गवर्नमेंट की भागीदारी है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, और या फिर गवर्नमेंट ने कोई काम किसी एनजीओ को दे दिया। एनजीओ को कैसे दिया? देखो, छत्तीसगढ़ में एक एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उस एनजीओ को क्या दिया गया? उस एनजीओ को यह हक दिया गया क्या? छत्तीसगढ़ में एक एनजीओ है, उस एनजीओ को यह कहा गया कि तुम लोग जो लेडीज होती है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लेडीज को स्टेरिलाइज क्या करा जाता है? वैसे ट्यूबेक्टॉमी करी जाती है। ट्यूबेक्टॉमी मतलब एक वैसे नसबंदी, ताकि उनके ज्यादा बच्चे पैदा ना हो। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करेंगे तो भी बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है? अब उस एनजीओ ने क्या किया कि महिलाओं को 34 विमेन, 100-150 महिलाओं को स्कूल के डर्टी बेंच पे लेटा के ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, और उस प्रोसेस में उन महिलाओं की मौत हो गई। उसमें से 34 महिलाओं की क्या हुआ कि पॉइजनिंग होने की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने जो इक्विपमेंट यूज किया, जो टूल यूज किया, वो सब खराब था, राइट? वो डर्टी था। अब जल्दीबाजी में किया गया, एनजीओ को 900 रुपए पर ऑपरेशन मिले। अब जिन 34 महिलाओं की डेथ हुई, उनसे उनके रिलेटिव्स ने, उनके किट एंड किन ने ये बोला सरकार को, बिहार सरकार को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, कि तुम हमें कॉम्पेंसेशन दो। स्टेट ने कहा हम नहीं देंगे क्योंकि ये तो एनजीओ की गलती है, एनजीओ से लो। लोगों ने कहा कि एनजीओ को तो हम जानते नहीं, हमने तो ये देखा था कि बिहार सरकार का ये कैंप लगा है इसलिए हमने किया था। तो हमने सोचा, लोगों ने सोचा कि सरकार ने जांच पड़ताल की होगी तभी इस एनजीओ को हायर किया है। कोर्ट में जब ये मैटर गया, कोर्ट ने कहा कि सरकार, बिहार गवर्नमेंट को ये कॉम्पेंसेशन देना होगा। Even though बिहार गवर्नमेंट कैन टेक रिकोर्स टू रिकवरी ऑफ द डैमेजेस, जो भी मुआवजा सरकार देगी लोगों को, पीड़ितों को, उनके फैमिलीज को, उसके बाद सरकार इन एनजीओ से पैसा रिकवर कर सकती है अलग केस फाइल करके। लेकिन लोगों को इस केस में भागीदार नहीं बनाना चाहिए, राइट?
लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि एनजीओ से डैमेजेस कॉम्पेंसेशन तुम खुद रिकवर कर लो। क्लियर? Is this clear to everyone? अब समझ में आया? मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, सो दैट यू रिमेन क्लियर। मैंने दोनों एग्जाम्पल ये भी दे दिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अगर प्राइवेट सेक्टर ने कोई सड़क बनाई है, उसमें खड्डा हो जाता है, इफ अ रोड कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर डेवलप्स अ पॉट होल एंड समबडी डाइज, कैन यू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट? आंसर इज यस। समझ में आया? तो government cannot absolve its responsibility by saying that this was done by the private sector or this was done by the NGO. Clear? ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। तो ये केस लॉ में बीसीसीआई के ऊपर एक केस किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया ले डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन अ क्राइटेरिया, क्या बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है या इंडिया एज अ नेशन को रिप्रेजेंट करती है? आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्राइटेरिया रखा उस हिसाब से बीसीसीआई ना तो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार द्वारा डोमिनेटेड है। या तो कि सरकार के आईएएस ऑफिसर्स बीसीसीआई में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स उसको चला रहे हो, या बीसीसीआई का फंक्शनल कंट्रोल सरकार के पास हो, सरकार ने रूल्स या लॉ के जरिए ये कहा हो कि बीसीसीआई ऐसे नहीं वैसे काम करेगी, या फिर सरकार इसको खर्चा दे रही हो। तीनों में से कुछ भी नहीं कर रही थी सरकार। बीसीसीआई का सिर्फ नाम था कि बीसीसीआई एक बोर्ड है फॉर कंट्रोलिंग द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, द कोर्ट देयरफॉर सेड दैट इट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हुआ क्या था कि जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जी टेलीफिल्म्स में यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि बीसीसीआई जो जी टेलीफिल्म से रेवेन्यू मिल रहा है, जी टेलीफिल्म्स ने यह कहा कि जी टीवी ने यह कहा कि हम जो बीसीसीआई के मैच हैं टेलीकास्ट करेंगे, इसका पैसा हमें मिलेगा। बीसीसीआई को पैसा मिल गया, बीसीसीआई ने ये सारे राइट्स जी को दे दिए। जी ने मान लो 100 करोड़ में टीवी पे ये राइट्स ले लिए कि मैच दिखाया जाएगा। अब जी टीवी राइट्स दिखा रहा था, तो बीसीसीआई को सरकार ने कहा कि तुम हमारी एजेंसी हो, तुम हमें पैसे दो। कोर्ट ने यह कहा कि बीसीसीआई तुम्हारी एजेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इन 3 कारण जो मैंने अभी समझाया ना तुम्हें, उन 3 कारणों की वजह से बीसीसीआई तुम्हारे अंडर नहीं आती। ना तो तुम उसे फाइनेंशियली कुछ दे रहे हो, ना उसका फंक्शनल कोई रूल या एक्ट है, ना कोई ऑफिसर तुम्हारे इसको चला रहे हैं। दूसरी तरफ एक केस ये भी फाइल हुआ कि बीसीसीआई ने जी प्राइवेट चैनल को ये ठेका क्यों दिया, बाकी चैनल स्टार को क्यों नहीं दिया, स्टार प्लस को क्यों नहीं दिया। ये स्टार कंपनी ने केस फाइल किया गवर्नमेंट के खिलाफ। उस केस में दोनों तरफ से सरकार फंस गई। एक तो स्टार चैनल ने बीसीसीआई और गवर्नमेंट दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कहा कि जानबूझ के मिली भगत के चलते जी न्यूज को, जी टीवी को ये ठेका दिया गया है, जबकि ये ठेका हमें मिलना चाहिए था। क्लियर? अब जब ये सारा कुछ चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर होता है ना कि पानी का पीएच स्केल कितना है, पानी एसिडिक है या बेसिक है, अल्कलीन है। तो सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दिस टेस्ट, दिस क्राइटेरिया, या तो फाइनेंशियल असिस्टेंस या फंक्शनल कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यदि किसी बॉडी का कोई कंट्रोल सरकार का है किसी बॉडी के ऊपर, तो ही उस बॉडी को यह माना जाएगा कि वो बॉडी सरकारी बॉडी है या नहीं। क्लियर?
यार अभी इसे थोड़ा सा इंटरनलाइज करो, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मुझे तुम्हें अच्छे से समझाने होंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। ओके, कल से क्लास जो है 1.5 घंटे की हो जाएगी। आज का दिन मैं थोड़ा क्लास को कट कर रहा हूँ। फॉर टुडे ओनली दिस क्लास इज़ फॉर 40-50 minutes। टुमारो ऑनवर्ड्स द क्लास विल बी फॉर 1.5 hours, और प्रोबेबली इकोनॉमिक सर्वे कोर्स एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद आई विल स्ट्रेच इट टिल 1.5 hours। ओके, 3-4 दिन और हैं, फ्राइडे तक ये इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस ओवर हो जाएंगी। डन गाइज, थैंक यू एवरीवन।